Hello everyone, welcome to Black's Institute. We are in the last lecture of the differentiation. Today we will complete chapter number 5, continuity and differentiability, and from the next lecture we will start chapter number 7, integration. इंटीग्रेशन में 3 चैप्टर मर्ज किए हुए हैं. फर्स्ट इज इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन पार्ट 1, second one is indefinite integration part 2, and the third one is definite integration. राइट ओके, पहले इसकी बात करें. सो 3 सम ये बुक के बाकी है. 23rd में आपको होमवर्क में दे रहा हूँ. 20, 21, 22 मैं करवा रहा हूँ, और उसके बाद में थोड़े बाहर के सम्स भी मुझे करवाने हैं, वो हम देखेंगे. सो लेट मी स्टार्ट. साइन ए प्लस बी, क्वेश्चन नंबर, बुक लेके बैठना है आपको, हमेशा आपको याद होगा. Question number 20 is this: using the fact that sin a plus b is Palanirigna and the differentiation obtain the sum formula for cosine. Sine formula is given, cosine formula we have to derive by using the differentiation. So हमें differentiation करना है. So indirectly in this sum it is given that a and b are function of x. मतलब उनका डेरिवेटिव जीरो नहीं हो रहा है, दे आर नॉट कांस्टेंट. ये भी याद रखना है. बुक में नहीं बताया, बट मीनिंग इज दैट, क्योंकि उसके बिना सम होगा भी नहीं. सो लेट मी स्टार्ट. वी हैव साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी plus cos A sin B. Differentiating with respect to x, because A and B are function of x, that's why. Okay, so therefore d by dx sin A plus B equal to d by dx sin A cos B, due to addition d by dx cos A sin B. Okay, the derivative of sin Mr. X is cos Mr. X into d by dx Mr. X. तो ये स्टेप आपको अगर लिखना है, यू कैन डायरेक्ट करोगे तो भी चलेगा. इक्वल टू, नाउ देयर इज मल्टीप्लीकेशन रूल. फर्स्ट एज इट इज d by dx cos b plus second as it is cos b as it is d by dx sin a, plus for the second bracket same multiplication rule, cos A into d by dx sin B plus sin B into d by dx cos A. Now therefore cos A plus B into dA by dx plus dB by dx equal to sin as it is derivative of cos Mr. X is minus sin Mr. X into dB by dx, you know this, plus cos B as it is derivative of sin Mr. X is cos A into dA by dx. Now for this, plus cos A as it is, the derivative of sin Mr. X is cos B into dB by dx plus sin B, the derivative of cos Mr. X is minus sin A
इंटू डी ए बाई डी एक्स। अब देखो, इन दोनों में से डी ए बाई डी एक्स, इन दोनों में से डी बी बाई डी एक्स कॉमन निकल रहा है, राइट। सो इक्वल टू, या फिर आप इन दोनों में से डी ए बाई डी, तो कॉस बी कॉस ए, और इन दोनों में से माइनस साइन ए साइन बी, यू कैन टेक कॉमन। मैं यहां से इन दोनों में से कॉस ए कॉस बी कॉमन ले रहा हूं, सो इक्वल टू कॉस ए cos b common, then dA by dx plus dB by dx, dA by dx plus dB by dx। सिमिलरली इन दोनों में से माइनस साइन ए साइन बी, then same here, dA by dx प्लस, अब दोनों में से dA by dx प्लस dB by dx कॉमन, सो इक्वल टू cos A cos B माइनस sin A sin B इंटू dA by dx प्लस dB by dx। अब दोनों साइड से dA by dx plus dB by dx चल बसे, and now the answer will be cos A plus B, ये फॉर्मूला बनेगी, देखो cos A cos B, cos A cos B minus sin A sin B, which is our required answer। cos A plus B is cos A cos B minus sin A sin B, which is our zingo answer। Ready for right? Now question number 21. What is question number 21? See, does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 points? Justify your answer। तो इसके लिए मैंने इसकी हेल्प ली, ये सब मैंने आपको करवाया हुआ है कि fx is equal to mod x minus a is continuous for all x belongs to R but not differentiable for x equal to a। तो देखो आप ऐसे लिख सकते हो कि therefore mod x minus 1 is continuous for x belongs to R but not differentiable at x is equal to 1। टेकिंग a is equal to 1, मैंने a की वैल्यू 1 ले ली तो मुझे ये फॉर्म मिला। नाउ व्हेन वी टेक a is equal to 2, similarly it will be mod x minus 2 is continuous for all x belongs to R but not differentiable at x is equal to 2। अब चाहे आप a की तीसरी भी वैल्यू लो, चौथी लो, जितनी चाहो ले सकते हो, you will get this kind of answers। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, therefore mod x minus 1 plus mod x minus 2 is continuous for all x belongs to R but not differentiable at x is equal to 1 and 2 means exact 2 points according to book I am saying that this function is continuous for all R for all the points but exactly 2 points we have at which the function is not differentiable। तो यहाँ पे जो बोला है कि for 2 अगर एग्जाम में 3 बोल दे तो आपको मोड x माइनस 3 ऐड कर देना है और फिर लिखना है कि मोड x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 2 प्लस मोड x माइनस 3 is continuous for all x belongs to R but not differentiable at x equal to 1 2 and 3 exactly 3 points।
सो आप आंसर बना सकते हो। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, जब मैंने करवाया था तब तो बताया था कि इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, सॉरी 22, नॉट 23। 23 मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ है। द फंक्शन वाइज दिस विच इज इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट, तो प्रूव दैट dy बाई dx इस फलाना ठिकाना जो दिया हुआ है वो आप देख सकते हो। मुझे dy बाई dx लाना है। अब डिटरमिनेंट को कैसे डिफरेंशिएट करें वो न तो हमारे सिलेबस में आया है न तो कोई सम ऐसा करवाया है। तो मैं क्या करूंगा कि ये डिटरमिनेंट को एक्सपांड करके पॉलिनोमियल फॉर्म बना दूंगा। सो बाय एक्सपांडिंग, सी देयरफॉर y इज इक्वल टू fx इनटू mc minus bn, mc minus bn minus gx into lc minus an, lc minus an plus hx into lb minus am, lb minus am. This is the expansion. खत्म। Indirectly we have given ABC and LMN are constant term, therefore their own derivative will be 0. तो कैसे करेंगे? Differentiating with respect to x, LHS will be d by dx equal to mc minus bn constant बनेगा d by dx fx into mc minus bn minus d by dx gx into lc minus an plus d by dx hx into lb minus am. By differentiating, the derivative of f is f dash x into mc minus bn, g का डेरिवेटिव होगा g dash x into lc minus an, and in the last the derivative of h is h dash lb minus am. मतलब जो कांस्टेंट टर्म हमारे पास थी वो तो एस इट इज चली आ रही है। डिफरेंस आया तो सिर्फ और सिर्फ एफ जी एच में, तो जहां पर एफ जी एच था वहां पर एफ डैश जी डैश एच डैश बना और कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब ये हुआ कि इसका जो फॉर्म होगा इट विल बी लाइक दिस, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स, गेटिंग और नॉट? एफ डैश एक्स g dash x h dash x and then lmn lmn and abc, which is our required answer. So कोई डिफरेंस नहीं है, फॉर्म इज सेम। तो डायरेक्टली हमारी फॉर्मूला हो गई कि इफ यू हैव एनी वन रो और एनी कॉलम इन वेरिएबल फॉर्म and the other elements are constant, तो आप डायरेक्ट अंदर डिफरेंशिएशन कर सकते हो बाय इन वन स्टेप। dy by dx is सिर्फ फर्स्ट रो इज वेरिएबल, अदर टू रोज आर कांस्टेंट, सो डायरेक्ट वी कैन राइट f dash x g dash x h dash x lmn abc। हाँ, अगर मोर देन वन रो और कॉलम आर वेरिएबल तो उसे एक्सपांड करके करना पड़ेगा। बट व्हेन वी हैव ओनली वन रो और ओनली वन कॉलम वेरिएबल फॉर्म and other elements are constant, so direct we can do. So this is the proof, right? So please make a note. Oceanic type sums, ये बाहर के सम्स है। यू नो ओशन, समुद्र, दरिया को आप जानते हो कि अगर उसमें से किसी ने 2 बाल्टी या 3 बाल्टी पानी ले लिया तो भी वो समुद्र ही रहेगा, कोई उसकी डेफिनेशन चेंज नहीं हो जाएगी।
2-3 बाल्टी पानी लेने से समुंदर समुंदर ही रहता है। उसका जो कैरेक्टर है, जो पर्सनालिटी है, उसकी जो ताकत है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। इट्स लाइक दैट कि भाई समुंदर यानी दरिया बहुत बड़ा है, इसीलिए तो बोलते हैं दरिया दिल। तो 2-3 बाल्टी पानी लेने से अगर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैथमेटिक्स में भी हमारे पास एक ओशन है, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव इज एन ओशन ऑफ द मैथमेटिक्स if we have infinite terms and if we give 2 or 3 or 5 10 sums to other person or other sum, still हमारे पास infinite terms ही रहेगी, वो कम नहीं होगी। after giving some terms to other sum, other topic, फलाना ढिकना, we will be owner of infinite terms, उसमें से कुछ कम होने वाला नहीं है। इट्स लाइक दैट। तो सम्स आप देखो पता चलेगा कि अगर इनफाइनाइट टर्म्स में से अगर मैं 1-2 टर्म्स कम भी कर रहा हूं तो भी वो इनफाइनाइट टर्म्स ही रहेगा। एंड दैट्स व्हाई वी विल से द टाइप इज ओशियनिक सम्स, मतलब ओशियनिक टाइप सम्स। सी फर्स्ट क्वेश्चन y is x raised to x raised to x raised to x raised to x till infinitive terms, मतलब प्रोसेस इज गोइंग ऑन लाइफ टाइम, कभी भी वो रुकने वाली नहीं है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ y? द डेफिनेशन ऑफ y इज व्हाट? The definition of y is that x raised to x raised to x raised to x raised to x till infinity। मतलब आपके पास अगर x raised to x raised to x raised to x raised to x infinity तक है, so you can write y in place of this term। Getting my point or not? तो मैंने क्या किया कि यहां से एक x को कम करके पूरी डेफिनेशन मैंने यहां से पढ़ना शुरू किया कि इट इज x रेज़ टू x रेज़ टू x रेज़ टू x रेज़ टू, कैन आई से इंफिनिटिव -1? नहीं। अगर समुंदर में से किसी ने 1 बाल्टी पानी ले लिया तो भी उसकी पर्सनालिटी समुंदर ही रहेगी। कोई उसे नहीं बोले हो इसके पास 1 बाल्टी पानी कम है, कोई नहीं बोलेगा। समझे कि नहीं? सो अगर मैंने एक x को कम कर दिया, अगर y की डेफिनेशन मैंने यहां से बना दी, स्टिल इट इज x रेज़ टू x रेज़ टू x till infinity। So we can write y in place of all these terms because it is definition of y, means that implies y is equal to x raised to y। हो गया सुनिए। देखो पहले ही सम था जिसको देख के अगर मैं बोलूं कि फाइंड इट्स डेरिवेटिव, तो आप सोचते कि क्या करें इतनी टर्म्स का, बट नाउ कितना कॉम्प्लेक्स हो गया। यू कैन, इट इज वेरिएबल रेज़ टू वेरिएबल, एंड व्हेन वी हैव वेरिएबल रेज़ टू वेरिएबल, इजीली वी कैन differentiate it by the log, taking log on both sides, so that implies log y is y log x। Now we can differentiate it, आप easily इसे differentiate कर सकते हो। So differentiating with respect to x, it will be the derivative of log Mr. x is 1 upon Mr. x, y का dy by dx is equal to multiplication rule। First as it is, derivative of log x is 1 upon x, log x as it is, और y का dy by dx। अब यहां से आपको dy by dx को सब्जेक्ट बनाना है, you will get answer। कितना इजी सम हो गया। सो ये हो गया ओशियनिक सम। तो इस टाइप के सम्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं। नाउ सी सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू sin x रेज़ टू sin x रेज़ टू sin x till infinitive।
we have 6 trigonometric functions, so we can make 6 kind of sums. आप कैसे सम्स बना सकते हो? साइन में लो, कॉस में लो, टेन में लो, कॉट में लो, सेक में लो, कोसेक में लो. We have 6 kind of trigonometric functions. Now third question, y is equal to sin x plus root sin x plus root sin x plus root sin x till infinite terms. Same, it is ocean. हमारे पास ये ओशन हो गया. अब इस ओशन में से मैंने एक बाल्टी यानी एक टर्म ले भी ली, स्टिल इट विल बी ओशन. वो उसकी पर्सनालिटी चेंज नहीं करेगा, उसे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उसका दिल दरिया है. एक टर्म लेने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो आराम से बैठा है. सो डेफिनेशन ऑफ y इज व्हाट? Sin plus root 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 sin. So definition of y is starting from sin, not from the square root. बराबर समझना. The definition of y is beginning from the sin. तो हमें इसे यहां से पकड़ना है. याद रखना, हमें इसे यहां से पकड़ना है. आपने अगर एक टर्म निकाली तो आपकी y की जो नई डेफिनेशन है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. साइन प्लस रूट 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 साइन, चलती रहेगी ट्रेन. सो द डेफिनेशन ऑफ y इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर व्हेन यू एलिमिनेट, व्हेन यू रिमूव वन टर्म, राइट? सो द फॉर्म विल बी y इज इक्वल टू sin x plus root of y. Now differentiating with respect to x. ये सारे सम डेरिवेटिव के मैं ले रहा हूं, तो यहां से आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो. यू कैन फाइंड dy by dx, आप इजीली ला सकते हो. ये मेथड हमने करवाई हुई है, राइट? यही फॉर्म को मैं थोड़ा चेंज करके आपको दे रहा हूं. सी, इफ वी हैव y is equal to root of sin x plus sin x plus तो जो y की डेफिनेशन है उसका थोड़ा फॉर्म चेंज हो गया. यहाँ पे द डेफिनेशन ऑफ y was it is starting from the sin, but here it starts from the square root. देखो स्क्वायर रूट से स्टार्ट हो रहा है. we have infinite terms. भाई उसमें से अगर मैंने एक या दो टर्म्स कम भी कर दी, फिर भी it remains ocean. उसकी जो पर्सनालिटी है, उसकी जो बिहेव है, उसका जो रुतबा है, वो चेंज होने वाला नहीं है. तो अगर मैंने एक टर्म निकाल दी, द डेफिनेशन ऑफ y इज बिगिनिंग फ्रॉम द रूट. एक रूट को मैंने हटा दिया, सेकेंड रूट यहां पे है, सो द डेफिनेशन ऑफ y विल बी स्टार्ट फ्रॉम हियर. यहां से ये हमारा y स्टार्ट होगा. सो बाय द डेफिनेशन ऑफ y इज रूट साइन प्लस रूट साइन प्लस रूट साइन. यहां से पढ़ने के बदले वी विल रीड फ्रॉम हियर रूट साइन प्लस रूट साइन प्लस रूट साइन प्लस रूट साइन. That implies it will be y is equal to root of sin x plus y. Y is equal to root of sin x plus y. Now by squaring, that implies y square is equal to sin x plus y. अब ये आप यहाँ से ये सब तो कर ही सकते हो. डिफरेंशिएटिंग, यहाँ भी dy by dx आएगा, यहाँ भी dy by dx आएगा, दोनों कॉमन ले लो, गेट द आंसर, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. x upon
1 plus x upon 1 plus x upon till infinity terms। देखो सारे सम्स में नहीं करवाऊंगा, ये फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। कोई भी इसमें चेंज ला सकता है। भाई 1 के बदले किसी ने a दे दिया, गेटिंग और नॉट? 1 के बदले किसी ने a दे दिया, मे बी। सो ये जो डेफिनेशन ऑफ y है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम x अपॉन 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x। तो मैंने एक टर्म कम कर दी, तो दूसरा x मुझे कहां से मिलेगा? बट ऑब्वियस यहां से, तो वहीं से वापस द डेफिनेशन ऑफ y स्टार्ट हो रही है। दूसरा x हमें मिलेगा यहां से, x upon 1 plus x upon 1 plus x upon 1 plus। So the definition of y is beginning from here। एक टर्म मैंने निकाल दी। by which kind of sums we have? oceanic type। मतलब ओशन में से आप एक दो बाल्टी पानी ले लो, एक दो बाल्टी टर्म्स ले लो, वो तो ओशन ही रहेगा, उसको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। सो द डेफिनेशन ऑफ y विल बी y is equal to x upon 1 plus y। अब इसे सिंप्लीफाई करके इजीली यू कैन फाइंड dy by dx। इसे मैं सामने मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो y into, and that implies y। now it is very easy for you। डिफरेंशिएशन वाला जो काम है उसके तो आप मास्टर हो, आपको सिर्फ फॉर्म को पकड़ना है। अगर एक बार फॉर्म आइडेंटिफाई हो गया, आपकी ट्रेन चलेगी जुमाजुम, राइट? चलो नेक्स्ट वन। See, the definition of y is beginning from 1। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चेंज है, देखो समझ रहे हो कि नहीं? बात हल्का हल्का चेंज है। सो सेकेंड वन हमें मिलेगा यहां से, एक टर्म मैंने अगर कम भी कर दी उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। सो अवर फॉर्म विल बी y is equal to 1 upon x plus y। Getting or not? सामने ले जाओ, that implies xy। It is our question। कितना इजी हो गया। तो ये टाइप के अगर सम्स आपको कहीं दिख रहे हैं, फॉर्म कुछ भी हो सकता है, इसमें चेंजेस मैं भी ला सकता हूँ, आप भी ला सकते हो, अदर टीचर्स भी ला सकते हैं, बट आपको उसे आइडेंटिफाई करना है कि विच काइंड ऑफ दिस सम। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इफ इट इज ओसेनिक सम, धड़ाधड़ एक टर्म कम करो, y की डेफिनेशन लगाओ, एंड देन डिफरेंशिएट, इजीली यू विल गेट द आंसर। सो प्लीज मेक अ नोट। ओके, जो फ्रीक्वेंटली बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सम्स है, उसमें से अगर मैं सिलेक्ट करूं तो एक ये सम आएगा और एक सम और भी है, इसके बाद मैं करवाने जा रहा हूं। बोथ द सम्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और एक बार आप देखो तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज यू कांट। इसीलिए मैं करवा रहा हूं। बाकी बहुत सारे सम्स है वी हैव कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बट अगर ये चैप्टर पूरा करने के बाद आप खुद ट्राई करो तो बट ऑब्वियस यू कैन। पर ये दो सम है वो कंपलसरी आपको देखने ही पड़ेंगे, देन यू कैन सॉल्व इट। सो लेट अस स्टार्ट। द क्वेश्चन इज 2x is equal to y raised to 1 upon m plus y raised to minus 1 upon m, then prove this। we have need of y2 means second order derivative। तो हमें दो बार यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, इट इज फैक्ट, राइट? सो यहाँ से स्टार्ट करो। सॉल्यूशन 2x is y raised to 1 upon m plus y raised to minus 1 upon m is number 1। सेकेंड थिंग माइंड में ये चीज भी रख लो कि y raised to 1 upon m and y raised to minus 1 upon m are reciprocal terms of each other, because due to minus exponent it will be 1 upon y raised to 1 upon m।
So both are reciprocal of each other, therefore their product will be 1. उनका multiplication 1 होगा, right? So differentiate. Second thing, अब यहां से मैं थोड़ा इजी बनाने के लिए मैं इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं. ऐसा करने से हमारा काम थोड़ा इजी होगा. इफ यू स्टार्ट फ्रॉम x, आपको आंसर तो मिलेगा पक्का, पर लंबा रास्ता हो जाएगा. सो शॉर्ट वे बन. शॉर्ट मतलब लंबा तो है पर लंबे में शॉर्ट. शॉर्ट मतलब कि अगर मैं इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं तो हमारा काम थोड़ा आसान होगा. सो डिफरेंशिएटिंग with respect to y, so the derivative of 2x will be 2 into dx by dy. We have need of dy by dx, but right now we have dx by dy. Similarly, equal to यहाँ पे Mr. x की तरह 1 upon m y raised to 1 upon m minus 1 into dy by dy, that is 1 because the differentiation is with respect to y, plus यहाँ पे minus 1 upon m into y raised to minus 1 upon m minus 1 into dy by dy, right? So मैं यहाँ से m LCM ले रहा हूँ और m को मैं सामने मल्टीप्लाई करूंगा. So 2m upon dy by dx. भाई मैंने dx by dy को लिख दिया 1 upon dy by dx equal to, now we have y raised to 1 upon m minus 1 माइनस यहाँ पर है माइनस y raised to minus 1 upon m minus 1 by dy by dx, that is y1. ये हमें पता है कि dy by dx means y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. ये y1 को मैं सामने मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. सो 2m is equal to y1 into y raised to 1 upon m minus 1 minus y raised to minus 1 upon m minus 1. अब ये जो y की एक्सपोनेंट है वो एक एक कम हो चुकी है. जब तक मैं ये फॉर्म नहीं बनाऊंगा मेरा सम आगे नहीं चलेगा. मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भले ही मिले पर आंसर जो मांगा है वो नहीं आएगा. फॉर दैट वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई होल टर्म बाय y. सो इट विल बी 2my इज इक्वल टू y1. यहाँ पे y मल्टीप्लाई हुआ मतलब एक एक्सपोनेंट वापस बढ़ गई माइनस सेम हियर. नाउ सी y raised to 1 upon m and y raised to minus 1 upon m both are reciprocals of each other. तो मैं यहाँ पे ये फॉर्म बनाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूं. देन 4m square y square is y1 square into y raised to 1 upon m minus y raised to 1 upon m the square. Now see, आप बड़े हो लिखूंगा नहीं. When we square it, first term will be y raised to 1 upon m square. Middle term will be minus 2 because minus 2 into y raised to 1 upon m into y raised to minus 1 upon m both are reciprocal terms of each other. इसलिए कुछ होगा नहीं. So यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा सोच समझना. y1 square into मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ y raised to 1 upon m plus y raised to minus 1 upon m square. Actually when we expand this its middle term will be minus 2 and here when we expand this it will the middle term will be plus 2. तो मैंने ये कर दिया minus 4. अभी आप थोड़ा इसे एक्सपांड करो ओरली. सो इट्स मिडल टर्म इज प्लस 2 minus 4 will be minus 2. देन वापस ये आंसर आ जाएगा. तो मैंने क्या किया ये फॉर्म यहाँ पे बना दिया. सो बाय 1 यहाँ पे we can write 2x. So therefore LHS is 4m square y square equal to y1 square into ये 2x का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर minus 4 by 1. भेजे में जा रहा है कि नहीं. मैंने यहां से इसके बदले 2x टिकाया 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर.
अब यहां से 4 कॉमन निकल के कटेगा, देयरफॉर m स्क्वायर y स्क्वायर इज x स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई वन स्क्वायर। पूरा मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया इनका, सो x स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ यहां पे जो मैंने डिफरेंशिएट किया था वो था विथ रिस्पेक्ट टू y, नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, चलो यहां पे मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, y1 स्क्वायर का होगा 2y1 इंटू y1 का होगा y2। क्या समझाने की जरूरत लग रही है? पहले एक्सपोनेंट का होगा 2y1 देन y2 प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव x स्क्वायर का 2x 1 का 0 इक्वल टू m स्क्वायर कांस्टेंट y स्क्वायर का 2y इंटू y1। नाउ सी 2y1 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 दोनों साइड से कॉमन निकल के कटेगा, जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज 2y1 निकल गया, सो x स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 प्लस 2y1 निकल गया, x y1 बचा इक्वल टू 2y1 निकल गया, m स्क्वायर y बचा, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। So very easy. So please write down this. If a minus b cos y into a plus b cos x is a square minus b square, then prove this. Very 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 important question. In this question, सिर्फ मुझे dy by dx चाहिए, एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है और ये आंसर लाना है। So when you start from here direct समझ लो आपकी भैंस गई पानी में। टू प्रूव दिस फॉर्म इट इज नेसेसरी कि यहां से y को सब्जेक्ट बनाओ। जब तक आप y को सब्जेक्ट नहीं बनाओगे यू विल नॉट गेट दिस आंसर, राइट? सो लेट इट स्टार्ट। मैं यहां से y को सब्जेक्ट बनाऊंगा, a माइनस बी कॉस y into a plus b cos x is a square minus b square. Now expanding, a into a will be a square plus ab cos x minus ab cos y and minus b square cos x cos y equal to a square minus b square. Now a square दोनों साइड से कैंसिल हुआ, मुझे y को सब्जेक्ट बनाना है, तो इन दोनों में से मैंने माइनस cos y कॉमन लिया और a b cos x को सामने ले लिया, so that implies minus cos y into ab plus b square cos x equal to minus b square minus ab cos x। अब यहां से भी b कॉमन निकल रहा है और यहां से माइनस b कॉमन निकल रहा है, सो दैट इंप्लाइज माइनस b cos y into a plus b cos x माइनस b कॉमन b प्लस a cos x, दोनों साइड से माइनस b भी कैंसिल हुआ, मुझे y को सब्जेक्ट बनाना है, मैं इसे दे रहा हूं डिनोमिनेटर में, सो cos y इक्वल टू b प्लस a cos x अपॉन a प्लस b cos x, and that implies y is equal to cos inverse of b plus a cos x upon a plus, रिमेंबर इट, ये क्वेश्चन आपको यहां से भी पूछ सकते हैं ये लोग,
यहां से भी पूछ सकते हो, ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब यहां से हमें सीधा सीधा डिफरेंशिएशन करना है। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, LHS will be dy by dx. Okay, what is derivative of cos inverse Mr. X? ये Mr. X हुआ। The derivative of cos inverse Mr. X is -1 upon under root 1 minus Mr. X square b plus a cos x upon a plus b cos x square into d by dx Mr. X। मतलब यहाँ पे डिवीजन रूल बनेगा b प्लस a cos x अपॉन a प्लस b cos x। कोई ऐसा वैसा सम नहीं है भैया, ये याद रखना। चलो आगे, दैट इंप्लाइज dy by dx इक्वल टू, अब यहाँ पे ऊपर नीचे में स्क्वायर दोनों को सेपरेट दे रहा हूं, सो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस न्यूमरेटर मीन्स b प्लस a cos x स्क्वायर अपॉन a प्लस b cos x स्क्वायर इनटू डिवीजन रूल इन डिनोमिनेटर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब a प्लस b cos x स्क्वायर इन न्यूमरेटर डिनो एज इट इज a प्लस b cos x, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव b का 0, cos का माइनस साइन, देन इट विल बी माइनस a sin x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज b प्लस a cos x, b प्लस a cos x, डिनो का डेरिवेटिव माइनस बी साइन एक्स। गेटिंग और नॉट? अब देखो यहाँ पे ये a प्लस बी कॉस एक्स का जो स्क्वायर है दैट विल बी एलसीएम। एलसीएम है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, फिर होल डिनो में आएगा, होल डिनो में स्क्वायर रूट से अगर बाहर लो तो स्क्वायर चला जाएगा, एंड इट इज डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर, सो विल गो इन न्यूमरेटर, मतलब फॉर्म बनेगा माइनस a प्लस बी कॉस एक्स अपॉन, ये यहां पे मल्टीप्लाई हुआ अंडर रूट a प्लस बी कॉस एक्स स्क्वायर माइनस b प्लस a cos x square. Similarly here, deno as it is a plus b cos x square. अब ऊपर से देखो मैं माइनस साइन x कॉमन ले रहा हूं, दोनों में से माइनस साइन x कॉमन बन रहा है, सो माइनस साइन x इंटू, अब यहां पे a बचा, सो a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी कॉस एक्स, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले ली। अब यहां माइनस बचेगी, ये वाली निकल गई, सो साइन एक्स निकला, सो 20 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी कॉस एक्स, साइन तो निकल गया, प्लस ए बी कॉस एक्स माइनस ए बी कॉस एक्स चल बसे, एक a प्लस बी कॉस एक्स भी गया, तो अब बचा तो क्या बचा, माइनस साइन इंटू माइनस, इट विल बी प्लस साइन, और यहां पे क्या बचा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पूरे डिनोमिनेटर। नाउ सी व्हेन वी एक्सपांड दिस, इट्स मिडिल टर्म विल बी 2ab cos x, इसकी मिडिल टर्म भी 2ab cos x होगी, बीच में माइनस है, दोनों के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, बोथ विल बी कैंसल, सो बचेगा तो क्या बचेगा, देखो जैसे इसकी फर्स्ट टर्म है a स्क्वायर, लास्ट टर्म है b स्क्वायर cos स्क्वायर, इसकी फर्स्ट टर्म है b स्क्वायर, दैट विल बी माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर इनटू a प्लस b cos x। कोई ऐसा वैसा सम नहीं है भैया, इक्वल इन न्यूमरेटर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर
इंटू साइन एक्स बटे में ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों को मैंने साथ में ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉस स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं देन इट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर इंटू ए प्लस बी कॉस एक्स। अब पूरे स्क्वायर रूट में से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ a square minus b square, then it will be 1 minus cos square means sin square। आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो a square minus b square अपॉन रूट a square minus b square, एक रूट a square minus b square कट गया, sin x, the square root of sin actually प्लस और माइनस होता है, but by this condition we can say it is plus, और बचा a plus b cos x because 0 less than x less than 5। तो साइन साइन दी गए तो बचा तो क्या बचा, रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a plus b cos x which is our Zingo answer। That's why it is very important question, ये आपको करना है, राइट। सो आज हम यहाँ तक रखते हैं, यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन वाला काम खत्म होता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट इंटीग्रेशन। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा।